اپنی انٹیلیجنس سے، اپنی ایمانداری سے اور بہادری سے وہ فتح کرتے کرتے غازی کہلائے اینڈ پہ۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ امن ملک فرام مائی چینل لیٹس ٹاک ونس اگین۔ کیسا چل رہا ہے آج کل؟ موسم گرم ہو گیا ہے، طبیعتیں ٹھیک ہیں، آپ سیف ہیں، گھروں میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج جو میں ایک ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ مجھے بہت ایکسائٹ کر رہا تھا یہ چیز سوچنا کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک اٹس موسٹ ویوڈ پلے اور سیزن یو کین سے اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو ڈرامہ تو ہم دیکھ رہے ہیں قسط وار، ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے ایکچوئل ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا کہ ارطغرل تھے کون اور واٹ ہیپن ان ہز لائف۔ ظاہری بات ہے ڈراماٹائزیشن کے اندر بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہیں اور الیبوریٹ بھی کی جاتی ہیں اور اس کے لیے ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے اینڈ دیکھنے کے لیے۔ تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بریک دا سسپینس، بٹ میں چاہ رہی تھی کہ کہیں سے مجھے کچھ کانٹینٹ ایسا ملے کہ جس کے اندر میں پوری ان کی ایکچوئل ہسٹری کے بارے میں جان سکوں۔ اینڈ دین آئی کیم اکراس دس ویڈیو جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور دیٹ مینس کہ آج ہم وہ ہسٹری دیکھیں گے کہ اصل میں ارطغرل غازی کی لائف کی ہسٹری کیا تھی۔ تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس تاریخ کے بارے میں، اس ٹرکش مسلم کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں جن کو ہم ارطغرل غازی کے نام سے جان رہے ہیں اور ان کا پلے دیکھ رہے ہیں۔ تو لیٹس بگن۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ صلیبیوں سے جھڑپ میں اس نے اناطولیہ پر قابض صلیبی سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ ساتھ لایا تھا ان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی ایشیائی کوچک مہم کا سربراہ نویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں روندتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون اور بھائی گلدارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔
उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। एर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरअंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। एर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नवियान के खिलाफ जंग के दौरान एर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद दो दुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। एर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने सरदारों को पैसे देकर साथ में लाया और सरदार बन गया। उसका सरदार बनने का मकसद था कि वो एर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। एर्तुगरुल के भाई की पुष्ट पर सल्जूक सुल्तान का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक सुल्तान को मारकर सल्जूकी तख्त पर कब्जे का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे एर्तुगरुल उस राह में रुकावट नजर आता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के सरदार नवियान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला कर लिया। एर्तुगरुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ एर्तुगरुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुष्ट पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करना चाह रहा था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साजगार न हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान एर्तुगरुल के कबीले की खातीन कालीन बनाने का काम करती रहीं और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर उसका सबसे बड़ा हरीफ चाबेदार कबीला था, जिसके सरदार जानेदार बे के बेटे औराल ने एर्तुगरुल की मुखालिफत की और उसके कालीनों के काफिले पर हमला करके उसके मुतअद्दिद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिया, जिसके बाद उसके कबीले पर मजीद मुसीबतें टूट पड़ी। वो जिस बाजार में तिजारत करते थे उस बाजार को हानली बाजार कहा जाता था। ये बाजार आज भी तुर्की में हानली बाजार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तंतीनिया के सलीबियों का जासूस था। जब एर्तुगरुल को मालूम हुआ तो सफेद दाढ़ी वालों ने उसे इस जासूस को खत्म करने का हुक्म दिया। एर्तुगरुल ने अपने सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर उसको बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबेदार कबीले के सरदार के बेटे औराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूंकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना जरूरी था, लेकिन एर्तुगरुल उसको खातिर में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाबाद का उस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रूमी और ईसाई ताजरों से जब एर्तुगरुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को बरगलाया कि एर्तुगरुल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने की बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही एर्तुगरुल का मद्दाह हो चुका था और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मिल्कियत होता है। सुल्तान ने एर्तुगरुल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापस कूनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने एर्तुगरुल को कारा चायसार कला फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उसको वादा किया कि वो जल्द अपनी एक फौज उसकी मदद को भेजेगा। उन सब जंगों में चाबेदार कबीले का औराल बे एर्तुगरुल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलियार और बहन इस्लाहान ने एर्तुगरुल का साथ दिया। आलियार जानफिशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई औराल को एर्तुगरुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरबराह बना दिया गया और एर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुत, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फजा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प में कले का कमांडर वेसिलियोस एर्तुगरुल के हाथों मारा गया और निकिया के शहंशाह ने आरस को गवर्नर बनाकर भेजा।
आरस ने अर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपक और चावेदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने अर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में मदद की। अर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चावेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नूरगुल को बना दिया। उससे निमटकर अर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतजार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कले पर हमला किया और कले पर कब्जा कर लिया। कले का गवर्नर आरस अपनी जान बचाकर भाग गया और कले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कारा चाइसार कला और हानली बाजार फतह करने के बाद अर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। अर्तुगरुल ने कले में अपने भाई सारम को नायब मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपक के साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कूनिया चला गया। कूनिया में सुल्तान को उसने अमीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा कलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। अर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपक का कब्जा हो गया। उसने कारा चाइसार कले और उस इलाके से अर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्प नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप को अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी मां के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपक ने कत्ल करवाया है, तो उसने अर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और अर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और अर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। अर्तुगरुल ने गुनाल्प बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुनाल्प को कारा चाइसार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वो इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आज़ादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सुल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओख्ताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नबियान को ये काम सौंपा गया कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नबियान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर अर्तुगरुल को नबियान के साथ ओख्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नबियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और नबियान की बहन मारी गई। उधर जब अर्तुगरुल ओख्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहिदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओख्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नबियान ने उसका ताक़ुब किया लेकिन नाकाम रहा। नबियान वापस चला गया और ओख्ताई खान के बेटे कदम खान को, जो उसका जानशीन था, उसे अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाक की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त नीकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थ्योडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसे डाक की जंग में सल्जूकों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम कलेदार, कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गयासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन कैकाउस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन कलीज अरसलान सुल्तान बन गया।
मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया था, जो मशरिक में तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बाकियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान अर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जद्दोजहद ज़ाहिरी नहीं थी। ज़ाहिरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलिकुल ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन के काउस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन दो बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद अर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। अर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने अमरूलो कबीले को सोगोत में बसाने का फैसला किया। अमरूलो कबीले का सरबराह अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में अर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था, जो अर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरूलो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदूज एलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन अर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाग बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाग बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अल्बास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। अर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल्बास्ती बोलाग बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जंगूच के रूप में। अल्बास्ती ने अर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। अर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतज़िर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के दो सरदारों को कत्ल कर दिया, जो उसके कबीले पर हमला आवर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और अर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए, लेकिन अर्तुगरुल एक मर्तबा फिर अपनी ज़हानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल उन दुश्मनों से निमटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरुक बोगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरुक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। अर्तुगरुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदार बे को कायम मकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फात हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत और फरोग इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमानिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है। वाओ, बहुत ही इंटेंस किस्म की हिस्ट्री है और हिस्ट्री बनती ही ऐसे है। आई थिंक द होल स्टोरी टेल्स कि इंटेलिजेंस और बहादुरी उनका खासा था। किस तरीके से साजिशों का शिकार होने के बावजूद भी अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी ईमानदारी से और बहादुरी से वो फतह करते करते गाजी कहलाए एंड पे। और आई थिंक बहुत ही खुशनसीब उनके पेरेंट्स भी थे और उनकी आवाम भी थी जिनको ऐसे लीडर मिले। अल्लाह तौफीक दे तमाम लीडर्स को, स्पेशली हम मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स को, कि उनके अंदर भी ईमानदारी, बहादुरी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवाम का एहसास और ख़्याल आए। उनके कबीलों के ऊपर कहत का वक्त आया, बहुत प्रॉब्लम्स आई,
ان کی چیزوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تو رسپانسبلٹی واز آلویز ٹیکن بائی دا سردار. تو بس دعا ہے کہ ایسی ہسٹری سے ہم انسپائر ہوں اور ہمارے لیڈرز انسپائر ہوں اور وہ عوام کا خیال کریں, ایمانداری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں. وتھ دس لٹل نوٹ آئی ول کم ٹو دی اینڈ آف دا ویڈیو. ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی, مجھے بہت ایکسائٹنگ لگ رہا تھا. آئی وانٹڈ ٹو نو ہسٹری. آپ کے کامنٹس کا, آپ کی لائکس شیئر سبسکرپشنس کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے. ہر دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. خوش رہیں, سیف رہیں, آسانیاں پیدا کرتے رہیں. تب تک until the next video, signing off. اللہ حافظ.